गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram everybody joining this session. We are at chapter number 4 Shrimad Bhagwat Geeta verse 21. निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. So Lord Krishna, Supreme Lord, says, Nirashi yat chittatma, whose intellect and mind, chit atma, that is mind and intellect, are free from expectations. Though the person delivers actions, but free from any expectations. Nirashi, free from expectation. Yat chit atma, whose mind and soul are free from expectations. Tyakt sarva parigraha, who has abandoned all sense of ownership. That the person, if does not has a sense of ownership, that this thing is mine, this thing is mine, such kind of ownership or any kind of possessionship, if a person is not having. Tyakt sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan na apnoti kilvasha. The person who is performing actions from body only, that person is not involving its determination or any kind of goal with it. That person is performing actions. Shariram kevalam karma. The person is performing actions from body itself and for God. Kurvan na apnoti nil kilvisham, and that person never incurs sin. So if person is doing work from body itself without any expectations, without having any kind of ownership on it, will not incur sin. So literal meaning is one who is without solicitation, जो किसी भी अपेक्षा से रहित है. The person who is free from solicitation, who has the mind and organs under control. And organs under control. So mind and organ, जिसके मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में है. is totally without possessions, किसी चीज पर अपना परिग्रह नहीं रखता है, अपना स्वामित्व नहीं रखता है. He incurs no sin by performing action merely for body. And वह व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वामित्व के जब कार्य करता है तो उसमें वो पाप को प्राप्त नहीं होता है. Now, नैवम आपनोति किल्बिषम, वो पाप को प्राप्त नहीं होता. Even according to worldly laws, if a person is driving in a correct lane at correct speed and accidentally somebody comes in front of car, then that kill, that court says that it is culpable homicide. ये हत्या एक गैर इरादतन हत्या है. यदि किसी व्यक्ति की कार से कोई हत्या हो जाती, and that person will not get any imprisonment or punishment because that is culpable homicide. In the similar manner, that is the jurisdiction of God. If we are not involving our mind, then our actions cannot form samskar or traces. So that actions ultimately get surrendered at the feet of God. That actions are for God. जो कर्म हम बिना किसी आशा से, स्वामित्व से या किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, वे कर्म ब्रह्म के कर्म हो जाते हैं, ब्रह्म को अर्पित हो जाते हैं और ब्रह्म से मिलाने वाले हो जाते हैं.
So if one is driving a car in correct lane and accidentally somebody is hit, then even this physical court does not consider it as a murder. Then what to say about our that is compassionate Lord's manifestation of this world? So in his court also it is our actions will not incur sin, and these are free from any kind of pressures, and it will evolve us at a higher pace. It can be proved that a person has no intention as he was driving the car in correct lane and has no intention to kill anybody, and intentionally somebody has came in front of the car. So if it is proved, then person is freed from any kind of that is punishment. So we should also do our work free from attachment, free from proprietorship, and then every act, our act should be for pleasing of God. Because Chaitanya Mahaprabhu once said that the soul by nature is the servant of God. हमारी चेतना, हमारी आत्मा प्रकृति से उस स्वामी की, प्रभु की चेरी है। तो हमें अपने सभी कर्मों से ये प्राकृतिक रूप से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वे कर्म करने चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु के प्रसन्न होने से, स्वामी के प्रसन्न होने से उसका सेवक प्रसन्न हो जाता है। तो जिन कार्यों से हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे तो आत्मा प्रसन्न होगी, प्रसन्नवती होगी और उनके और निकट आती चली जाएगी। नेक्स्ट वर्स इज 4.22। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, whatever comes on its accord, whatever arbitrarily comes, yadracha labh, that is labh, whatever you are gaining, more or less, whatever comes on its accord, whatever we gain, santusto, if we are contented, what we are possessing, we are not demanding for more. Whatever is given, it is bestowed to us by God, and it is as per our curriculum and for the pace of evolution. So we should get contented on it. यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, जो जो भी हमें प्राप्त है, यदि भक्त उससे संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो, फ्री फ्रॉम डुअलिटी, द्वंद्व से विमुक्त रहता है, अतीत रहता है, परे रहता है। विमत्सरा, फ्री फ्रॉम enviness, that if somebody is having that higher Bangalore car and so many amenities and we are not having, we are deprived. So if such kind of things are not coming in mind, we are getting happy with the prosperity of others. जो दूसरों को देखकर, उनकी धन संपत्ति को देखकर, उनके वैभव को देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर वैमनस्य नहीं करता, द्वेष नहीं करता, विमत्सरा, उनसे द्वेष नहीं करता। If a person is free from envy, samah siddha vasiddhau cha, equipoised in success as well as in failure, वो व्यक्ति जो साम्यावस्था में है, सिद्धि और असिद्धि की अवस्था में, सफलता और असफलता की अवस्था में, कृत्वापि न निबध्यते, that person on doing action do not incur boundness. So the person, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की भावना को मन में रखकर, जो सिद्धि और असिद्धि को समान देखते हुए, जो जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहते हुए, द्वंद्वों से विमुक्त रहते हुए कार्य करता है, वो कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज remaining satisfied with what comes unasked for, having transcended the duality
being free from spite, and equipoised under success and failure, not bound even by performing actions. Remaining satisfied, whatever comes. Whatever comes, we are the students of this very large institution of God. We are not here came for comfort. जैसे कि विद्यार्थी के पंच लक्षणों में ये भी कहा जाता है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा, जिसकी श्वान जैसी निद्रा हो, सभी उसके तप होते हैं विद्यार्थी के। तो कौवे जैसी निगाह रहती है, बगुले जैसा ध्यान रहता है, कुत्ते जैसी उसकी नींद रहती है। इन द सिमिलर मैनर वी आर हियर द स्टूडेंट्स एंड वी आर नॉट हियर फॉर कंफर्ट। वी शुड एवर रिमाइंड, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम इस पाठशाला में, भगवान की पाठशाला में विद्यार्थी हैं, ये हम आराम फरमाने नहीं आए हैं। एंड वॉट एवर इज गिवन टू अस बाय अवर प्रिंसिपल, बाय अवर मास्टर ऑफ एवोल्यूशन is as per our curriculum, as per our current status, and we should not demand any less or more. हमें यहाँ जो भी प्राप्त है वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है। हमें ये नहीं कहना चाहिए प्रिंसिपल से कि हमें 8th की बुक दे दो या 6th की दे दो। अगर हमें 7th की बुक मिली है, then it is as per our curriculum. Whatever materials are given to us, it is for our curriculum and it is best suited to us, because we are not visionary, we are not knowing what is better suited for us, what is not suited. So we may ask that this thing is to be, but it is completely in vain. We should not do it for our greater praise of evolution. So यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी हमें प्राप्त है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो हमारे विकास की धारा के, हमारे विकास के पाठ्यक्रम के लिए और हमारी वर्तमान स्थिति के तदानुकूल है। अगर हम ऊपर नीचे की डिमांड करेंगे तो हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से ही च्युत हो जाएंगे, उससे ही बिखर जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो दिया है उससे पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। नाउ remaining satisfied, what comes unasked, whatever is given we should satisfy. This is the key feature in our day-to-day life. What is given, whatever comes, we should tune it. If we are not tuning it, we are getting mistuned, then that sound is not a music, it is a noise. हमको उससे ट्यूनिंग कर लेनी चाहिए जो वर्तमान स्थिति है, तभी उसमें संगीत बजेगा। और अगर हम उसमें मिस ट्यून कर लेंगे तो संगीत नहीं बजेगा कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। जो भी वाद्य यंत्र है, कई लोग तो घड़ा बजा लेते हैं, कई लोग जल तरंग बजा लेते हैं, जो दिया है उसी में से संगीत उत्पन्न करें, अलग से किसी हारमोनियम सितार गिटार की मांग ना करें। सो having transcended the duality, though this world is fabricated with duality, if there is loss then there is gain also, if there is happiness then there is depression also, if whatever is the thing there is victory, then there is disaster or failure also. This world is full from duality. We cannot ask our government or our God that please give me only one kind of extremes and not the other kind of extremes. हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से ये नहीं कह सकते कि हमें आनंद दो, सफलता दो, लाभ दो, सुख दो और दूसरा पक्ष ना दो। क्यों? क्योंकि जो धागा है वो जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। इसी प्रकार से ये धागे के ताने बाने से ये पूरी माया ने संसार को ढक रखा है। इट इज निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। सो दिस इज, ये जो भगवान की माया है द्वंद्वों से युक्त है। जो द्वंद्वों को देख लेते हैं और मध्य में स्थित रहते हैं, वे किसी एक द्वंद्व के साथ नहीं जाते, न सुख के साथ जाते हैं न दुख के साथ। उसको अनुभव तो करते हैं लेकिन मध्य में स्थित रहते हुए वो दोनों को समान दूरी पर देखते हैं, जो साम्य अवस्था में है। So the person who is free from duality, it does not mean that his senses are lost. It means that person is
sensing those dualities but is at the center equidistant from both. He is not biased from any duality. वो किसी द्वंद्व की ओर नहीं जाता, वो किसी द्वंद्व को नहीं चुनता, ना सुख को चुनता है, ना दुख को चुनता है, ना लाभ को चुनता है, ना हानि को। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहता है और अपने कर्म को प्रभु के चरणों के लिए, प्रभु को अर्पित करने के लिए करता है, स्वयं को विद्यार्थी समझता हुआ, जो इस संसार की पाठशाला में मुदित रहता है। मुदित मन होगा, विद्यार्थी खिन्न मन होगा, तो वो अपनी शिक्षा को उचित ढंग से न कर पाएगा। So the person, the student who is happy in this world, taking every question, every situation as a challenge bestowed by God. Whatever comes, it is a good question. It may be harder question, but it is given by my teacher. Let us solve it in a very good manner. Though if we are not able to solve, our teacher is behind us, and that teacher will help us to solve. Because if teacher has given some question and we are trying to solve it, then teacher will surely help us if we are not solving it. And if by all of our efforts we are failed to solve it, then we should go at the feet of God. Teacher, let me help to solve. Teacher becomes happy to, जब उस भगवान ने हमको प्रश्न दिए हैं, परिस्थितियां दी हैं, हम विद्यार्थी स्वरूप साधकों को, अपने बच्चों को जब उसने प्रश्न दिए हैं, परिस्थितियां दी हैं, तो हमें उन्हें मुदित मन से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम हल नहीं कर पाते हैं अपने प्रयासों से, तो उसके ही चरणों में प्रणिपात होने चाहिए कि भगवान इस प्रश्न को हल करा दो। ये नहीं कहना चाहिए भगवान प्रश्न बदल दो, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न किसी उस बहुत बड़े विजन के लिए, लक्ष्य के लिए उस ईश्वर के द्वारा दिया गया है, हमारी विकास की धारा को तेज करने के लिए दिया गया है। प्रश्न बदलने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न हमारी वर्तमान स्थिति के पूरी तरीके से अनुकूल है, उसी प्रश्न को हमें हल करना है, तभी हम अगले कर पाएंगे। यदि हम 7वें की किताब ना हल करें और कहें हमें 8वें की पढ़ना है, तो 7वें का जो भूला हुआ है, जो हम छोड़ देंगे, वो 8वें में हमें जरूर वहां कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। सो वॉट एवर इज गिवन, it is inevitable, the situation is inevitable, we have to solve it, we have to overcome it, we have to overlook from some higher heights, and from that outlook we can subsidize the situation and surpass the situation. तो किसी परिस्थिति को हमें हटाना नहीं है, उस परिस्थिति से ऊंचे उठकर साक्षी भाव से उसे देखना है। ऐसा करके हम जब ऊंचे उठ जाएंगे तो वे परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी, गौड़ हो जाएंगी, और हम फिर अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। फ्री फ्रॉम डुअलिटी, हम इस संसार को द्वंद्व से मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को द्वंद्व से ऊपर उठाकर ही प्रश्नों को देखें, परिस्थितियों को देखें। यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, हु इज फ्री, who is contented whatever comes on its own accord. Dvandatito, free from duality. Vimatsara, that is free from enviness. And next is equipoised and under success and failure. सम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्ध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. So we should see sukh dukh samay kratva, labh alabh jay ajay. If we are performing our action in such a manner, then we will not incur sin. Now Lord Ram himself, who is a divine pastimes, has on the previous day he was proposed the reign of that Ayodhya, and on the same day evening he was sent to exile, 14 years of forest exile. So you can say even Lord Ram was not spared from these dualities. How can we? Our Lord is giving us teaching by his own story that we cannot escape from the dualities, but in the similar instance he was equipoised. वे दोनों ही परिस्थितियों में भगवान राम, जब उन्हें अयोध्या का राजमहल मिल रहा था और जब वो वन भेजे गए, उनके चेहरे की मुदिता वही थी, वो स्थिरता वही थी, वो ठहराव वही था,
वैसे ही साधक में ठहराव होना चाहिए। परिस्थितियां बदलें, लेकिन उसके चेहरे से हम ना पढ़ पाए क्या हुआ है। So, while living in this world, nobody can hope to neutralize the duality, to have only positive experience. Uh, then, how can we successfully deal with these? If we are thinking of this, that there should be positive experience. See, the whatever arch is made, एक जब मेहराब बनाया जाता है, बुर्ज बनाया जाता है, तो एक ईंट इधर लगती है और उतने ही एंगल पर एक ईंट इधर लगती है, फिर एक ईंट यहाँ, एक, और उससे उसमें एक मजबूती आती है, वो स्ट्रक्चर बन पाता है। इफ द angles of these bricks are not opposite, and it then if it is not at dualities, then it will, the structure itself will fall. In the similar manner, both things come. If we are in happiness, then we will lose our senses, the ability of senses to sense the चेंजेस इन द वर्ल्ड। यदि हम केवल सुख सुख में रहें तो सुख को हम अनुभव करने की योग्यता भी खो दें। यदि एक राजा नर्म गद्दों पर ही पूरी जिंदगी सोया हो तो उसे नर्म गद्दों में आनंद नहीं आएगा, उसको कभी कंकड़ों पे भी सोना पड़ेगा, तभी वो उस नर्म गद्दे का आनंद ले सकता है। यदि हम दुख में होंगे तो ही सुख का आनंद ले सकते हैं। हमने हार चखी हो तो हम जीत का भी सुख ले सकते हैं। जिस व्यक्ति की कभी जिसने मृत्यु और जन्म न देखा हो, वो जन्म को बड़ी कीमती चीज नहीं मानेगा, बोलेगा ये तो जीवन तो जिंदा रहने के लिए ही बना है। तो हम जब विपरीत परिस्थितियों को, दोनों सिरों को देखते हैं, तो उन परिस्थितियों में ही हम हमारी इंद्रियां ठीक प्रकार से बरत पाती हैं जो भी परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को। So we cannot free us from dualities. These dualities will come and go. We have to learn that how should we be equipoised. ये द्वंद्व तो आते और जाते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से ये माया बनी हुई है, और वो हमें जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा रखती है। तो ये द्वंद्व आते रहेंगे, इन्हीं द्वंद्वों से हमें परे हो जाना है और अंदर स्थित प्रज्ञ हो जाना है। परिस्थितियों में एक समान रहते हुए अपने कर्मों को ब्रह्मार्पण करते हुए, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए, हमें अपने इस साधना पथ में निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। Now, if we develop detachment to the fruits of our action, concerning ourselves merely with doing our duty in life without yearning the result, we should do our duty. We should not even get attached to the result. We should, by our best, give our performance. Whatever question comes from God, we are the obedient students of our teacher, so we should with our full concentration try to solve it. And happy teacher is not becoming happy if we solve it, but if we are having our full-fledged effort, टीचर बिकम्स हैप्पी। यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर दुखी, हम पर क्रोधित हो जाए। अगर हमने पूरा प्रयास किया है, कई पेज लगा दिए हैं, वो खुश होगा कि देखो इस बच्चे ने इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरी जान लगा दी। टीचर भी जानता है, हमारी क्षमताओं को जानता है, हमारे इंद्रियगत विकारों को जानता है। तो अगर हमने प्रयास किया है उसको प्रसन्न करने का और उसके प्रदत्त प्रश्न को हल करने का, वो प्रसन्न होता है। तो हम अपनी पूरे प्रयास से जो भगवान ने परिस्थितियां दी हैं उनको ओवरकम करने के लिए उनमें उन्हीं परिस्थितियों से सीखने का प्रयास करें। ये सोचें ये परिस्थितियां क्यों आई हैं और क्या सिखाने के लिए आई हैं। क्या हम उन परिस्थितियों में सम हैं, या उन परिस्थितियों के जाने की तो कहीं हम चेष्टा नहीं कर रहे हैं। यदि परिस्थितियां आई हैं तो सोचना चाहिए ये तो भगवान की दी हुई हैं, और भगवान हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि जो परिस्थितियां हैं अदल बदल कर देते रहते हैं, प्रश्न बदल के देते रहते हैं। यदि साधक के मन में भगवान रहेगा तो ये परिस्थितियां उस भगवान की संदेश वाहक हैं, वो उसमें उसकी कृपा देखेगा और उन परिस्थितियों से वो निरंतर सीखता रहेगा। और उसके भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि उन परिस्थितियों को
वो हमारे संदेश के रूप में देख रहा है। ये हमारा नजरिया है जो महत्वपूर्ण है, जो साधक को भगवान से मिला देता है। इस प्रकार से हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ सकते हैं यदि हम परिस्थितियों को भगवान का संदेश वाहक देखते हैं। इफ वी सी सिचुएशंस लाइक द मैसेंजर्स ऑफ गॉड of our evolution of God, then we will directly get linked. The soul is directly get linked with super soul. Next verse is 4.23. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य, who is free from material attachment and doing actions, free from material attachment, not for any material gain. That person is doing free from material attachment. For what he is doing actions? To pleasing the God, because God itself is continually working. In the similar manner, we as the sparks of our God should work. So the person who is free from material attachment, muktasya, that is liberated from all the three modes, satogun, rajogun and tamogun. So all the three kind of attributes, if it is free, जो संग से, आसक्ति से मुक्त है, भौतिक आसक्ति से मुक्त है, सांसारिक वस्तुओं में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, गत संग से, मुक्त से, जो मुक्त है। और भी इसके ऊपर के भी बहुत सारे हैं। मन से मुक्त है, उसका मन किसी इंद्रियों का दास नहीं है। जो आसक्ति से मुक्त है, आसक्ति से रहित है और मुक्त है। ज्ञानावस्थित चेतसा, वेल सिचुएटेड इन डिवाइन नॉलेज, वेल सिचुएटेड इन डिवाइन नॉलेज। चेतसा, whose intellect is well situated. So that is, there are the three tiers. One is our, this is body is governed by our senses. ये जो रथ है, इसको ये घोड़े जहां ले जाएंगे वही जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को हमारी इंद्रियां जहां ले जाएंगी वहां वो चलते चले जाएंगे। लेकिन इंद्रियों को, घोड़ों के लिए भी एक चाबुक बंधी होती है। तो वो जो चाबुक है उनकी, वो मन है। सो अवर सेंसेस आर गवर्न्ड बाय अवर चेतसा, मन। तो अगर हमारा मन मुक्त है, वो इन बाहरी परिस्थितियों में इनकी तरफ गमन नहीं करता, भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक आनंद में गमन नहीं करता, तो हमारी इंद्रियां भी उनकी ओर आसक्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कमजोर पड़ जाएंगी। उनसे ऊपर की जो सूक्ष्म शक्ति है, जैसे कि शरीर स्थूल है, इंद्रियां उससे थोड़ी सूक्ष्म है, मन उससे थोड़ा सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो मन अगर इंद्रियों का साथ ना दे, मन से भी ऊपर बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतः सुसा। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धि, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म और बलशाली आत्मा है। तो जैसे रथ को घोड़े ले जाते हैं जहां मर्जी, लेकिन घोड़ों पे लगाम लगी होती है, वे लगाम मन है। लगाम को पकड़े हुए बुद्धि है। यदि सही तरीके का सारथी है तो सारथी उसे जहां जहां चाहेगा ले जाएगा। लेकिन रथ में बैठा हुआ एक रथी भी है, वो आत्मा। तो आत्मा फिर रथी कहेगा सारथी से तुम यहां ले चलो। यदि हमारी आत्मा हमारी बुद्धि से कहे, अगर हम आत्मनिष्ठ हैं, इफ वी आर वेल सिचुएटेड इन सोल, then we can guide our intellect that you should also offer yourself at the feet of God. Then as the intellect is superior, it will guide our
माइंड, तो हमारी बुद्धि मन को कहेगी, मस्तिष्क को कहेगी कि तुम इंद्रियों के साथ मत जाओ, क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है, और इंद्रियां तो शरीर गामी होती हैं, भौतिकतावादी होती हैं, तुम भगवान को भजो। तो हमें अपना मन ईश्वर की ओर लगा देना चाहिए। अवर ऑल एक्शन शुड बी इन्फेस्टेड with the feelings of God, with the devotion of God. Our all actions should be offered at the feet of God. If our mind is thinking in such a manner that everything itself is bestowed by God, ये सारा संसार तो भगवान के द्वारा ही वरदानित है और हमें वरदान स्वरूप में मिला है। ये हमारा सब सिलेबस है, जितने लोग हैं वो हमारे सिलेबस के हिस्से हैं। If we are thinking in such a manner, then we may acknowledge the compassion of God. हम उस भगवान की कृपा को फील कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, और फिर हमारा मन हर चीज में उसी को देखने लगेगा। जब हम एक विद्यार्थी के रूप में आएंगे तो संसार अपने आप पाठशाला दिखने लगेगा, हम ये परिस्थितियां अपने आप किताबें दिखने लगेंगी, और जो भी कुछ आने जाने वाले द्वंद हैं वे हमें सरल और कठिन प्रश्नों के रूप में दिखने लगेंगे, और हम अपने तार को सीधा उस प्रधानाचार्य और भगवान से जोड़ पाएंगे। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम भूल भी गए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं। इस चीज को पकड़ लेने से सारी चीजें पकड़ में आ जाती। जैसे कि कुएं में अगर पानी जा रहा हो, रस्सी गिर रही हो और आखिरी सिरा पकड़ में आ जाए, तो हम रस्सी समेत बाल्टी और बाल्टी समेत पानी भी पा सकते हैं। उसी तरीके से ये सिरा अगर पकड़ में आ जाए कि हम विद्यार्थी हैं, तो उस विद्यार्थी समेत हम सारी परिस्थितियां, उसके साथ साथ प्रभु को भी अपना सकते हैं। सो द लिटरल मीनिंग इज यज्ञाय आचरतः कर्म, द पर्सन हु इज performing the action as a sacrifice, that it should not leave anything. We are putting samvidha in some pyre, जैसे हम संविदा या हम हवन सामग्री आग में डालते हैं, यज्ञ में डालते हैं, तो फिर वो पूरी तरह भस्म हो जाती है, उसमें कुछ हमारा नहीं रहता। इन द सिमिलर मैनर अवर एक्शन should be sacrificed at the feet of God. It should be not for our sake, it should not be for any goal, it should not have any attachment or something that is prejudiced. Those actions samagram praviliyate, that are completely praviliyate, are freed, having not traces on us. So these are completely dissolved. Those actions leave no traces on us and free us from bondings of this body, mind, senses. From these bondings, such actions are freeing us, and so that our bird, that is soul, ultimately flies towards God. So the literal meaning is that of the liberated person who has got rid of attachment, whose mind is fixed in knowledge, actions undertaken for a sacrifice get totally destroyed. So those actions are completely destroyed. जैसे एक विद्यार्थी का जीवन तपस्वी का जीवन होता है, इन द सिमिलर मैनर एक साधक ईश्वर के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, आराम के लिए नहीं। आराम करने वाला विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाता। In this word, Lord Krishna summarizes the conclusion of the previous 5 verses. That is, dedication of all one's success to God result from understanding that the soul is eternal servitor of God. So dedication of all actions to God. Our all actions should be dedicated to God and not for our mere benefits. Chaitanya Mahaprabhu itself has said that soul by nature is the servant of God. So we should, if we are serving to God by nature, then it is a long lasting. Which is done by nature lasts longer. In the similar manner, if we are doing anything offering to God, we will become happy because it is our nature. So in this way, it will not incur any sin and leave any sinful reaction.
Verse 4 point. Now let me recite bhajan. Shri Ram. धीरे धीरे जीवन नैया, धीरे धीरे जीवन नैया, चली प्रभु की ओर, चली हरि की ओर। धीमे धीमे डोल रही है, धीमे धीमे डोल रही है, तट के बंधन तोड़, चली हरि की ओर। जल गहरा चंचल है तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। जल गहरा चंचल है तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। कैसे बिन पतवार के नैया, कैसे बिन पतवार के नैया, जावेगी हरि ठौर, चली हरि की ओर। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। मेरा तो प्रभु तू ही सहारा, मेरा तो प्रभु तू ही सहारा। चरणन संग लो जो, चली हरि की ओर। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो, मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो। ले चलो अपनी ओर, चली हरि की ओर। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती।
लेंगे थाम वो राम खेवैया, लेंगे थाम वो राम खेवैया, बांध प्रेम की डोर, चली हरि की ओर। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। Thank you, Bhaiya, for the wonderful discourse and for the beautiful bhajan.